مجھے معلوم ہے کہ کیا ٹھیک ہے، مگر پھر بھی وہ سب مجھ سے ہوتا نہیں، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف جان لینا کافی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو جان لیا جاتا ہے وہ آپ کا حصہ ہو جاتا ہے، وہ آپ بن جاتا ہے، وہ آپ کا کیریکٹر بن جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف جان لینے سے بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تم نہیں جانتے، کیونکہ اگر تم جانتے ہوتے تو بدلنا جاننے کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ جاننا جسم ہے اور بدلاؤ سایہ ہے۔ جسم ہوتا تو سایہ بھی ضرور ہوتا، جسم ہو اور سایہ نہ ہو ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ یہ مسئلہ جاننے کا نہیں ہے، تم نے جاننے کا بھرم پال لیا ہے۔ ڈیلیوژن، سراب ہے تمہیں جاننے کا۔ تم جانتے نہیں ہو، بس سوچ لیا ہے کہ تم جانتے ہو۔ سن کے جانا ہوگا، پڑھ کے جانا ہوگا، زندگی کے تجربے سے نہیں جانا، ہونے کی حالت میں نہیں جانا۔ کسی اور کے جانے کو اپنا جاننا مان بیٹھے ہو۔ خود اپنا تجربہ نہیں ہے، تم خود پر ابھی نہیں بیتے ہو، اور جاننا تو بس وہی ہوتا ہے جو خود پر بیتا ہو۔ جاننا تو وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کے تجربے سے پھوٹے۔ جاننا ارسطو کو یاد کر لینے کا نام نہیں۔ ارسطو کو یاد کر لینے کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ تم نے ایک شخص کے جانے کو جان لیا ہے جس کا نام ارسطو تھا۔ پہلے اس بات کو سمجھو کہ جاننا ہے کیا۔ جاننا اصل میں تمہارے زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ عطر کو دیکھتے ہو، بہت سارے پھولوں کو نچوڑ کر عطر کشید ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی زندگی کے بہت سارے ایکسپیرینسز کو نچوڑ کر جو عطر بنتا ہے اس کا نام ہے جاننا۔ حقیقی علم کے ایک تنکے میں ہزاروں لاکھوں زندگی کے تجربوں کا نچوڑ ہوتا ہے، جیسے عطر کے ایک قطرے میں سینکڑوں پھولوں کی پتیوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ علم ادھار ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا سوچنا یہ ہے کہ علم وہ ہے جو تم کتابوں سے مستعار لیتے ہو، کسی کو سن کے یاد کر لیتے ہو۔ یہ کتاب سے پڑھا، کان سے سنا علم نہیں ہے، معلومات ہیں جن کو سٹور کرنے کی تمہارے دماغ میں کیپیسٹی ہے۔ ادھار کا علم اس کا تو علم ہو سکتا ہے جس سے تم نے ادھار لیا ہے، یہ تمہارا علم نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے یہ بس تمہارے میموری کارڈ میں سٹور کچھ انفارمیشنز ہیں۔ علم ادھار کی دولت کا نام ہوتا ہی نہیں۔ بینک کا کیشیئر روزانہ لاکھوں کروڑوں کے نوٹ گنتا ہے، سنبھالتا ہے، انہیں چھو سکتا ہے، انہیں پکڑ سکتا ہے، لیکن کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ کروڑوں کا مالک ہے۔ نہیں، اس کی جیب میں تو مہینے کے آخر میں وہی 40-50 ہزار ہی پہنچتے ہیں جو اس کی تنخواہ ہے۔ اب اگر یہ کیشیئر یہ سمجھ رہا ہے کہ کیونکہ وہ سارا دن پیسوں میں رہتا ہے اس لیے پیسے والا ہے، تو اس کو اپنا دماغ چیک کرانے کی ضرورت ہے۔ علم بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے۔ تم جاننے کا سوچ رہے ہو، جانتے نہیں ہو۔ علم وہ عطر نہیں کہ بازار سے جا کر خرید لو، یہ تو تمہیں اپنی زندگی سے، اپنے ہونے سے، اپنے تجربات سے، اپنی بینگ سے کشید کرنا پڑے گا۔ علم کسی کاغذ کی کتاب سے حاصل نہیں ہوگا، یہ تو بس ایک ہی کتاب سے مل سکتا ہے، اور وہ کتاب ہو تم۔ زندگی کو پل پل جی کر، انچ انچ چل کر ہی تم علم کو حاصل کر سکتے ہو۔ علم پڑھ کر نہیں ملتا، جی کر ملتا ہے۔ جیے بنا جو ملے وہ معلومات ہیں، تم بس ان معلومات کو علم سمجھ بیٹھے ہو اور یہ سراب پال رہے ہو کہ تم جانتے ہو۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو، تم جانتے ہو کہ آگ جلاتی ہے۔ بچپن میں کئی بار تم نے آگ کو چھونے کی کوشش کی اور تم پر یہ بیتا کہ آگ جلاتی ہے۔ یہ تم پر بیتے گئے تجربے کا علم ہے، یہ ہے تمہارا جاننا، اور جاننا تمہارا حصہ ہو گیا ہے۔ اب کچھ بھی ہو جائے تم کبھی بھی آگ کو نہیں چھوؤ گے۔
अब ये इल्म तुम्हारे होने का हिस्सा है, तुम्हारे कैरेक्टर का हिस्सा है। ये तुमसे अलग कोई हकीकत नहीं है। अब इसको दूसरी मिसाल से परखने की कोशिश करो। तुम कहते हो कि तुम जानते हो कि गुस्सा अंदर को जलाता है। तुम मानते हो कि गुस्सा किसी और की गलती की सजा खुद को देने जैसा काम है, लेकिन ये बस तुमने माना है, ये तुमने सुना है, ये किसी फलसफी की किताब में पढ़ा है। इसलिए ये इल्म तुम्हारा इल्म नहीं है, ये तुम्हारा जाना हुआ नहीं है। हाँ, ये उस शख्स का इल्म है कि जिसको गुस्से की वजह से बीपी दिल का मसला हो गया हो और उसे डॉक्टर कहे कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार तुम्हारा गुस्सा है और ये तुम्हारी जान ले सकता है। अब वो शख्स गुस्सा चाह कर भी ना कर पाएगा। अब ये उस पर बीता हुआ इल्म है। अब ये महज किसी फलसफी की किताब से याद किया हुआ एक फिक्रा नहीं कि जो उसकी याद के खाने में जमा है। अब तुम कहते हो कि तुम जानते हो कि गुस्सा करना बुरा है, लेकिन बात ये है कि तुम नहीं जानते। तुमने बस सुना है। तुमने सुना है कि लालच बुरी है, तुमने सुना है कि धोखा देना बुरा है, तुमने पढ़ा है कि सच में निजात है। लालच के बुरा होने का तजर्बा तो तुमको मौत के वक्त तक नहीं हो पाता। सच की निजात का एहसास तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं होता। अगर तुम जानते होते कि गुस्सा जलाता है, लालच मिटाती है, झूठ बर्बाद करता है, तो कैसे ये हरकतें तुम कर पाते? तुमने सूफी फकीरों से सुन लिया कि मैं मसला है, अना बीमारी है। तुमने मुकद्दस किताबों में पढ़ा कि सच में निजात है और झूठ में तबाही है, मगर अना से, झूठ से तुम बच नहीं पाए। तो जानो ये तुम्हारा जाना नहीं है, ये उधार का इल्म है, और जो उधार का हो वो इल्म हो ही नहीं सकता। माशियात का प्रोफेसर सारा दिन दौलत पढ़ाता है, दौलत कैसे काम करती है, कैसे जमा होती है, कैसे दौलतमंद बना जाता है, कैसे लोग दौलतमंद बने, ये सब वो पढ़ाता है, मगर जानता नहीं है। जानता होता तो पढ़ाता क्यों? दौलत कमाता, क्योंकि पढ़ा भी तो वो दौलत के लिए ही रहा है ना। ये तुम्हारा इल्म नहीं है, सजेशन है, हिदायत हैं जो तुम्हें घर से मिली, स्कूल मदरसे से मिली। माशरा कह रहा है कि सच अच्छा है, झूठ बुरा है, बस तुमने सुन सुन कर ये फिक्रा याद कर लिया है। जैसे अपना नाम औरों से सुन सुन कर अपने नाम को तुम अपना आप मान लेते हो। ये जानना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा जब तक न बताएगा कि गुस्सा, झूठ, लालच बुरा है, तो तब तक गुस्सा, लालच, झूठ, इन सब को तुम बुरा भी कहते रहोगे और गुस्सा, लालच करते भी रहोगे, झूठ बोलते भी रहोगे। तुम्हारी जिंदगी के तजर्बे के साथ बड़ा गहरा मसला है। तुम उम्र में 50-50 साल के हो जाते हो, मगर तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा बच्चे जैसा ही रहता है। बच्चे को कहते हैं कि आग के करीब ना जाओ, और जितना ज्यादा उसे रोका जाता है उतना ही ज्यादा वो आग की तरफ जाता है। वो सोचता है कि सारी दुनिया जो ये करने से रोक रही है तो यहां जरूर कुछ है। तुम उसी बच्चे जैसे हो। तुम सारा दिन कह सकते हो कि गुस्सा बुरा है, मगर गुस्सा करने का मौका आता है तो उसे करने से नहीं चूकते। सारा दिन कहते रहो लालच बुरी है, लेकिन मौका मिले तो लालच कर ही लेते हो। सारा दिन कहते रहो कि झूठ बुरा है, मगर मौका आए तो झूठ बोलने से चूकते नहीं। तुम कहते हो कि तुम जानते हो कि क्या ठीक है, मगर होता नहीं। इस बात को समझो कि जो तुम जानते होगे वो तुम्हें कभी करना ही नहीं पड़ता, वो तुमसे हो ही जाता है। जैसे तुम अंग्रेजी जबान जानते हो या अपनी मादरी जबान जानते हो, तो वो बोलने के लिए तुम्हें कोई तकल्लुफ थोड़ी करना पड़ेगा। तुम जब मुंह खोलोगे उसी जबान के ही लफ्ज निकलेंगे जिस जबान को तुम जानते हो। जिस दिन तुम सच में जान जाते हो गुस्सा बुरा है, लालच, झूठ बुरा है, तो उससे बचना नहीं पड़ता। ये तुमसे हो ही ना सकेंगे। दोस्त, तुम नहीं जानते। तुमने जानने के नाम पर जानने का शराब पाल रखा है। याद रखना, करोगे तो हमेशा ही तुम वही जो तुम्हारे अंदर से आ रहा है, जो तुम्हारा हकीकी जानना होगा, जो सुना सुनाया नहीं होगा, जो तुम्हारे होने में शामिल होकर
तुम ही हो गया होगा। बाकी ज़रबुल अमसाल हैं जो कही जा सकती हैं, बोली जा सकती हैं। करते तो तुम वही हो जो तुम हो, जो तुम हकीकत में जानते हो। दुरुस्त तौर पर कोई बात जान ली जाए तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं जानता तो हूं कि क्या ठीक है, मगर वो ठीक मुझसे होता नहीं है। दुरुस्त अगर तुम जानते हो तो वो तुम्हें करना नहीं पड़ता, वो तुमसे हो जाता है। इस बात को यूं समझो कि तुम सारे जानते हो कि कमरे में आने या जाने का रास्ता दरवाज़ा है, और ये भी तुम सारे जानते हो कि कमरे में दीवार के रास्ते ना तो आया जा सकता है ना जाया जा सकता है। अब ये तुम्हारा इल्म है, ये तुमने जान लिया है। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम कभी दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करो। तुम हमेशा दरवाजे से निकलते हो और कभी ऐसा तकल्लुफ के साथ नहीं करते, बस वो तुमसे हो जाता है क्योंकि इस हकीकत को तुमने जान लिया है। यह है हकीकी जानना, और ये जानना अब कोई बाहरी हकीकत नहीं रहा बल्कि तुम्हारे होने का एक हिस्सा हो गया है। तुम जानते हो कि आग जलाती है, तुम जानते हो कि पानी डुबाता है, तुम जानते हो कि बुलंदी से गिरना जख्मी करता है, इसलिए कभी इन चीज़ों के पास नहीं जाते और ऐसा तुम तकल्लुफ के साथ नहीं करते। ये तुमसे होता है। ये जानना, ये इल्म तुम हो गया है। तुम कहते हो कि तुम जानते हो कि क्या सही है, फिर भी तुमसे होता नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम कहो कि जानता तो हूं कि ये दरवाज़ा है, यहीं से निकला जा सकता है, मगर मैं दीवार से ही निकलने की कोशिश करता रहता हूं। अगर जानते होते कि दुरुस्त क्या है तो कभी तुमसे गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि होना बस रिजल्ट है, असल प्रोसेस तो जानना है, करना तो बस जानने का इजहार है। तुम जानते हो कि प्यास है, उसके बाद उठना और फ्रिज तक जाना और जग उठाना और पानी पीना, ये सारा एक्शन उस जानकारी का नतीजा है। समझो, तुम अगर दरवाजे की बजाय दीवारों से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो तुम दरवाजे के बारे में नहीं जानते। तुम अगर गुस्से के नुकसानदेह होने के बावजूद गुस्सा कर रहे हो, लालच के मनहूस होने के बारे में जानने के बावजूद लालच में पड़े हो, सिकंदर जैसों के खाली हाथ मर जाने के किस्सों को हकीकत मानने के बाद चीज़ों को जमा करने में ज़िंदगी जी रहे हो, तो समझो तुम नहीं जानते। तुम और किसी के जाने को बस दोहरा रहे हो। हाँ, तुम्हारे अंदर कोई है जो इन हकीकतों को जानता है, इसलिए तुम इन फ़लसफ़ियों, इन सूफ़ियों, इन मज़हबों की बातों को सुन लेते हो और सच्चा मानने का ढोंग कर लेते हो। तुम्हारे अंदर कोई है जो इस चीज़ को पहचानता है, मगर वो जो तुम्हारे अंदर मौजूद है तुम तो उसको भी नहीं पहचानते, इसलिए बस अनकॉन्शियसली सारी ज़िंदगी झूठ को बुरा कहते भी रहते हो और बोलते भी रहते हो, लालच को नहूसत समझते भी रहते हो और करते भी रहते हो। पैसे से तुम्हारे अंदर का खला भर नहीं सकता, इसका इकरार भी करते रहते हो और इसी पैसे से खुद को भरने की कोशिश भी जारी रखते हो। तुम जिंदगी के कमरे से, दीवारों से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो जिंदगी के कमरे के दरवाजे को नहीं जानते। जानते होते तो इंसान ऐसे ना जीता जैसे जी रहा है। दरवाज़ा जानने वाला अगर दीवारों से सर फोड़ रहा है तो उसका बस इतना ही मतलब हो सकता है कि वो अपना सर फोड़ना चाहता है। तुम्हारी हालत पता है कैसे है? उस शख्स की जैसी जो एक कमरे में बंद है और कमरे में मुकम्मल अंधेरा है और इस घुप अंधेरे में वो टटोल रहा है कि दरवाज़ा कहाँ है। अब अगर उस कमरे में कोई लाइट को ऑन कर दे तो उसे कमरे को टटोलने की क्या ज़रूरत रहेगी? वो सीधा उठेगा और दरवाज़ा खोलकर चला जाएगा। इल्म, हकीकी जानना इसी लाइट की तरह है। तुम गौर से देखो आज के इंसान को, जिंदगी के कमरे को टटोल रहा है, एक एक चीज़ को छू रहा है, देख रहा है कि शायद यही दरवाज़ा है, शायद
शराब निजात दे दे, शायद दौलत खुशी दे दे, शायद बड़ा ओहदा कामयाबी दे दे, शायद औरतें या मर्द सुकून दे दें, शायद बेतहाशा शॉपिंग निहाल कर दे, शायद कोई महल दिल का खला भर दे, शायद कोई एडवेंचर मुझे पूरा कर दे, शायद शोहरत दर्द का मसीहा साबित हो जाए। थोड़ा सा साकित होकर इस इंसान को सोचो तो सही, ये किसी ट्रैप्ड चूहे की तरह बिहेव कर रहा है, अंधेरे कमरे में फंसा हुआ चूहा जो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हो। और फिर तुम कहते हो कि तुम जानते तो हो कि दुरुस्त क्या है, मगर वो तुमसे होता नहीं। रोशनी जल रही हो, इल्म का चिराग रोशन हो, तो क्या टटोलोगे और क्यों टटोलोगे? टटोल रहे हो तो समझो कि इल्म का चिराग बुझा हुआ है, किसी के चिराग की थोड़ी बहुत रोशनी तुम्हें छू रही है और तुम उस थोड़ी बहुत रोशनी को समझ रहे हो कि तुम देख सकते हो। तुम जानते हो कि गुस्सा करना बुरा है और फिर भी किए जा रहे हो। तुम जानते हो कि दुनिया के सारे खजाने भी किसी लालच का पेट नहीं भर सकते, मगर फिर भी लालच किए जा रहे हो। ये जानना कैसे हो सकता है? ये तुमने बस सुन रखा है। सुना हुआ तुम्हारा इल्म नहीं हो सकता, पढ़ा हुआ तुम्हारा इल्म नहीं होगा, जिया हुआ तुम्हारा इल्म होगा। जब गुस्सा करना छोड़कर उस लज्जत को जियोगे, फिर होगा ये जानना। जब लालच से आज़ाद जीना सीख लोगे, तो फिर होगा ये जानना कि लालच से आज़ाद होते ही तुम हर बंधन से आज़ाद हो जाते हो। आज़ाद परिंदे की तरह उड़ना शुरू कर देते हो। जानने के धोखे को जानना ना मान लो, क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि तुम जानते हो कि क्या दुरुस्त है, मगर वो तुमसे होता नहीं, तो ऐसा हर जानना जानने का धोखा समझो। जान जाओ कि तुम नहीं जानते, और जैसे ही तुम ये जान गए कि आई डोंट नो, समझ जाना कि जानने के सारे दरवाजे खुल गए। बीमार बीमारी को मान ले, जान ले, तो अब इलाज की फिक्र हो सकती है, अब सेहत मुमकिन है। लेकिन अगर बीमारी को ही सेहत मानते रहे, बीमारी से नजरें चुराते रहे, तो जान लेना कभी सेहत नहीं मिलेगी। गलत जाने को दुरुस्त जाना मान कर जी रहे हो तुम। दुरुस्त जानने तक पहुंचना इस नफ्सियाती हालत के साथ नामुमकिन है। और इस वक्त इंसान की बीमारी यही है कि वो जानता नहीं है, मगर ये मान कर बैठा है कि वो जानता है। किसी भी इंसान से किसी भी मौजू पर कुछ भी पूछ लो, तुम्हें उसकी बातों से यही लगेगा कि वो जानता है। कभी टीवी पर बैठे एंकरों को सुनो, किसी मस्जिद में खतीब को सुनो, मंदिर में पुरोहित को सुनो, गिरजे में पादरी को सुनो, और इनको छोड़ो किसी होटल के ढाबे पर बैठ जाओ और आम लोगों को सुनो। माँ बाप को बच्चों को समझाते, जिंदगी पढ़ाते, लेक्चर देते सुनो। सारे इसी यकीन के साथ बात कर रहे हैं कि वो जानते हैं। ये कैसा जानना है कि जिसने उन्हें तो फायदा दिया नहीं, लेकिन वो इससे दूसरों को फायदा देना चाहते हैं। वो बाप जो सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागा है और कभी उस तक नहीं पहुंच पाया है, या पहुंच भी पाया है तो सुकून नहीं पा पाया है, वो क्यों पूरे यकीन से अपने बेटे को उसी रेस में दौड़ने पर उकसा रहा है? वो डॉक्टर ना बन सकने वाला बाप जो सारा बचपन लड़कपन डॉक्टर बनने के पीछे दौड़ा मगर ना बन पाया, वो कैसे अपने बेटे को एक नाकाम रेस दौड़ने पर मजबूर कर रहा है? वो बाप जो डॉक्टर बन भी गया मगर सुकून की जिंदगी नहीं जी पाया, वो कैसे अपने बच्चे को डॉक्टर बनने की नसीहतें कर रहा है? हर कोई जानने का दावा संभाल कर बैठा है, मगर कोई भी ये सवाल अपने सामने रखने पर तैयार नहीं कि अगर ये सारा दुरुस्त इल्म मेरे पास था तो मेरी जिंदगी क्यों अंधेरे कमरे में दरवाजे को टटोलते गुजरी है?
जिस दिन तुमने ये सवाल अपने सामने रखा उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब शुरू हो जाएगा। रुको, थोड़ा सा स्लो हो, खुद से ये सवाल करो कि ये जो मेरा जानना मेरे होने को दुरुस्त नहीं कर पाया है, वो जानना हो कैसे सकता है? अपने जाने पर सवाल उठाओ। आई डोंट नो की अजमत के सामने एक बार झुकते ही जानने के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जिंदगी के अंधेरे कमरे में इल्म का दिया चमक उठता है। इस बात को समझो कि जानने का दावा, जानने का ज़ोम तुम्हारी वुसअत नहीं है, तुम्हारा दायरा है। और जैसे ही तुम कहते हो कि मैं नहीं जानता, तो ये फिक्रा तुम्हारी महदूदियतों की सारी दीवारें तोड़ देता है। आई डोंट नो इस कायनात का सबसे ताकतवर फिक्रा है। आई डोंट नो इम्कानात की नामुख्ततम दुनियाओं का दरवाजा है। एक अजीज ने पूछा है कि जिंदगी गुजारने का कुलिया क्या होना चाहिए। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। कभी तुमने कमल का फूल देखा है? कमल झील में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, मगर झील के पानी को छूता नहीं है। वो झील का होता भी है और उसका होकर भी उसका नहीं होता। कमल को पता होता है कि वो इस झील और इस झील की कीचड़ से पैदा हुआ है। वो जानता है कि इसको तश्कील देने वाला एक एक सेल, एक एक खुलिया इसी कीचड़ से निकला है, मगर वो इस सारे जाने के बावजूद इस कीचड़ से मावरा हो जाता है, इस कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि कीचड़ ने उसको एक खास शक्ल जरूर दी है, मगर वो कोई शक्ल तो नहीं है, वो सिर्फ ढांचा ही तो नहीं है, बल्कि वो खुदाई हुस्न की एक अलामत भी है। कमल कीचड़ को जीता है, मगर हमेशा उससे मावरा रहते हुए। कमल का फूल झील में होता है, मगर झील का पानी उसे छूता नहीं है। इंसान का भी जीना इस तरह का हो सकता है। एक तो इंसान होता है आम इंसान, आम दुनियादार इंसान, जिनसे ये पूरी दुनिया भरी हुई है। वो कीचड़ में उगता है और कीचड़ में ही जीता है। वो कमल नहीं बन पाता, वो खिल नहीं पाता, वो कीचड़ से ऊपर उठ नहीं पाता। कीचड़ में लिथड़ा हुआ कीड़े की तरह जमीन के कोने खुदरों में मकान बनाता, ठिकाने खोदता। लेकिन गौर से उस इंसान को देखना जो कमल नहीं बन पाता, जो कीचड़ की जिंदगी को ही जिंदगी समझता है, जो खुद में मौजूद रूह को, खुदाई मकाम को, डिवाइन पॉइंट को खोजने की कोशिश नहीं करता। वो एक न एक दिन इस जिंदगी से उकता ही जाता है, उकताना ही होता है। तुम्हारी दुनिया में इस वक्त इंसान जो जी रहा है, इसको गौर से देखो। ये जिंदगी से उकताया हुआ आदमी है। ये नशे में डूब जाना चाहता है। ये बेमकसद सारा दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भंग चढ़ाए रखना चाहता है। कीचड़ की जिंदगी उकता देती है। अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जमीन के नीचे कोनों खुदरों में किस कीड़े ने कितना बड़ा अपना ठिकाना बना लिया है, किस कीड़े की फैमिली किस स्टेटस की हामिल है। तुम्हारी दुनिया के गरीब हों या अमीर, उनको गौर से देखो। ये कीचड़ से ना उठ पाने का सितम सहने पर मजबूर हैं। इन्होंने हर तरह से खुद को भरने की कोशिश कर ली है, मगर इनको ये बात समझ आती जा रही है कि ये भर नहीं सकते। ये कुछ भी कर लें, ये चांद सितारों पर कॉलोनियां बना लें, ये जैसी भी इजादें दरियाफ्तें कर लें, ये किसी भी टेक्नोलॉजी से कैसी भी सहूलतें और आसाइशों से घरों को भर लें, इन चीज़ों का जमा करना, उन चींटियों की
उस सरगर्मी से मुख्तलिफ कोई खेल नहीं जो चींटियां सारा दिन अपने खुड्डों में अनाज जमा करती रहती हैं। इंसान अब समझ रहा है, कोई खेल बहुत अरसे तक खेलो तो उसमें इंसान की दिलचस्पी कम हो ही जाती है। ये हजारों साल से इंसान जिंदगी के नाम पर जिस खेल को खेलता आया है, अब वो उस खेल से उकता रहा है। अब गौर से देखो इसकी इजादों को, इसकी दरियाफ्तों को, इसके साइंसदानों की सारी मेहनत को देखो, इसके फनून लतीफ़ा को देखो, इसकी वार टेक्नोलॉजीज को देखो, इन सब पर गौर करो। ये सारे के सारे शोबे जिंदगी पसंद नहीं हैं, जिंदगी मुखालिफ, जिंदगी गुरेज, फरार पसंद। टेक्नोलॉजी के नाम पर आपके पास क्या बच रहा है? कंप्यूटर और मोबाइल्स की ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में, ज़्यादा वीडियोस, ताकि तुम्हारा वो वक्त किसी तरह कट जाए जो बसूरत दीगर कटने की कोई राह ही नहीं बची। सोचो ना, तुमसे मोबाइल कंप्यूटर छिन जाएं, तुम क्या करोगे? तुम्हारा क्या हाल होगा? ये गैजेट्स तुम्हारे पास ना हो तो फिर तुम सवाल उठाओगे ना कि कीचड़ में क्यों जिए, कमल की तरह कीचड़ से मावरा क्यों ना हो जाएं। तुम्हारी साइंस, तुम्हारी टेक्नोलॉजी का दूसरा शानदार पहलू भी देख लो। ऐसे ऐसे बम कि दुनिया पूरी की पूरी तबाह हो जाए। इस टेक्नोलॉजी को तुम जिंदगी पसंद तो नहीं कहोगे। फिल्में, टीवी, वेब सीरीज, क्या क्या नहीं है तुम्हें ऑक्युपाइड रखने के लिए कि कहीं तुम इस सवाल के रूबरू ना हो सको कि कमल कैसे हुआ जाए। ये सारे जिंदगी मुखालिफ रवैये क्यों? क्योंकि इंसान जिंदगी नाम के इस खेल से उकता रहा है। अब तो इसकी बका सिर्फ एक ही सवाल से जुड़ी है कि कीचड़ का होते हुए भी कीचड़ से कैसे ऊपर उठ सकूं, कीचड़ में रहते हुए ही कमल कैसे हो जाऊं। याद रखो, इस कीचड़ से आज तक कोई सुख को नहीं पा सका है। इस कीचड़ से कभी किसी को इत्मीनान तो मिला नहीं है। ये कीचड़ सुख के सराब तो क्रिएट कर सकती है, सुख नहीं क्रिएट कर सकती। हो सकता है कि तुम बेरोजगारी से बरसरे रोजगार हो जाओ और खुशी से फूले न समाओ, नई फैक्ट्री खड़ी करके बड़े खुश हो जाओ, नया महल जैसा मकान बना के एहसास से सुकून पालो। पसंद की शादी के बाद, किसी बड़ी कामयाबी के बाद तुम्हें ये जिंदगी इंटरेस्टिंग लगने लगी हो। मगर गौर करना, इन सब कामयाबियों के बाद कितने दिन तक तुम इनसे सुख पाते रहे हो। जो डॉक्टर बनने के लिए तुमने 10 साल मेहनत की, वही डॉक्टर बनने के 10 माह बाद ही तुम उस जॉब से उकता जाते हो। कीचड़ सुख का शराब दे सकती है, मगर आज तक एक भी शराब ऐसा नहीं जिसे जिंदगी ने हकीकत में ढलता देखा हो। चाहे वो शराब सिकंदर को हो कि पूरी दुनिया फतह कर लूं तो खुशी मिल जाएगी, या वो शराब किसी बच्चे का हो कि फलां खिलौना मिल गया तो और किसी खिलौने की चाह नहीं रहेगी। नहीं, तुम जितनी शिद्दत से जिस भी खिलौने के पीछे भागते हो, उसके पास पहुंचकर एक ही राज खुलता है कि खुशी तो किसी और ही खिलौने में है। एक फैक्ट्री वाले की खुशी 10 फैक्ट्रियों में नजर आना शुरू हो जाती है। नौकरी की खुशी प्रमोशन में शिफ्ट हो जाती है। कोई और खिलौना, कोई और मंजिल। शराब का यही तो मैकेनिज्म है। रेत में पानी नजर आता है, दौड़ो और दौड़कर पहुंचो, और पहुंचने पर मिलेगा क्या? वही रेत। इंसानों में जो जितना ज्यादा ज़हीन होगा, वो उतना जल्द ही इस खेल को समझ जाएगा, और इस खेल को समझ जाने से ही वो इस खेल से मावरा हो जाएगा। ये समझदार आदमी की निशानी है कि वो बैठे अपने माजी को देखे, अपने आज के ख्वाबों का उस माजी से मुकाबला करे। वो आदमी समझदार है जिसने ये जान लिया कि जब मैं 4 साल का था तो खिलौने मांगता था,
और खिलौनों के मिल जाने को ही जिंदगी का मकसद जानता था। 10 साल का हुआ तो खिलौने बदल गए, 20 साल का हुआ तो खिलौने बदल गए, और इसी हिसाब से जिया तो सिर्फ खिलौने बदलते रहेंगे, मेरी दौड़ नहीं बदलेगी। वो सवाल उठाता है कि अगर यही दौड़ जिंदगी है तो ये तो बड़ी बेकार दौड़ है, और जिसके जहन में ये सवाल पैदा हो गया फिर वो कीचड़ में कंवल की तरह कीचड़ से मावरा होना जान जाता है। वो दुनिया को छोड़ता नहीं है। इस बात को समझो कि तुम सूफी उसको न समझ लेना कि जो फरारिया है, जो जंगल भाग रहा है। हाँ, शुरू में सेल्फ डिस्कवरी के लिए तन्हाइयाँ, जंगल, वीराने मददगार हो सकते हैं, मगर इसी वीरानी को प्यारे मत हो जाना। वापस दुनिया में आने से डरना ये सूफी का शेवा ही नहीं होता। जो वापस दुनिया में आने से डर रहा है वो डरपोक है। उसके लिए अभी भी दुनिया मिटी नहीं है, अभी भी वो उसे शराब मानने पर तैयार नहीं है, अभी भी दुनिया उसके लिए वैसी ही अहम है जैसी तब थी जब वो दुनियादार था। कंवल कीचड़ से भागकर कंवल नहीं बनता, कीचड़ में होते हुए कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। फकीर की जिंदगी का कुलिया यही है कि इसी दुनिया में रहो, जो जी रहे हो उसी को जियो, जो तुम्हारी जॉब है, जो तुम्हारा बिजनेस है। घर को, फैमिली को, बिजनेस को छोड़कर भागना नहीं है, बस इस चीज को छोड़ना है कि ये तुम्हारा होना नहीं है। तुम्हारा होना तुम्हारे पेशे से नहीं जुड़ा, तुम्हारा होना तुम्हारे ओहदे से नहीं जुड़ा, तुम्हारा होना तुम्हारी खानदानी वाबस्तगी से नहीं जुड़ा। नजर वाला हो और सहरा में खड़ा हो तो शराब उसको भी नजर आएगा, रेत उसको भी पानी ही दिखेगी, मगर वो उसके पीछे दौड़ेगा नहीं। बात सिर्फ दौड़ने से रुकने की है। जो भी ख्वाहिश तुमको दौड़ा रही है और ये थॉट पैदा कर रही है कि ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो तुम हो जाओगे, तुम कामिल हो जाओगे, वही ख्वाहिश ही शराब है। चलना दौड़ना खराबी नहीं है, चलने दौड़ने के नतीजे में कहीं पहुंच जाने की, कुछ और हो जाने की ख्वाहिश खामी है। कंवल बनना चाहते हो तो कीचड़ को नहीं छोड़ना, कंवल का फूल भी कीचड़ को नहीं छोड़ता। तुम्हें भी दुनिया को छोड़ने, इससे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम भागे तो तुम समझे ही नहीं कि तुम भी वही कुछ कर रहे हो जो दुनियादार करता है। वो बस चिमटता है क्योंकि जिससे चिमट रहा है उसे अहम समझता है, और तुम भागते हो क्योंकि तुम भी उसे अहम समझते हो जिससे भागते हो। दोनों एक ही गलती कर रहे हैं। बगैर छोड़े इस दुनिया से आजाद हो जाना है इनलाइटनमेंट। कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से उठ जाना है कंवल हो जाना। सूफी की जिंदगी में तन्हाई मकसद नहीं होती, हाँ मकसद को पाने का जरिया हो सकती है। जो सूफी जंगल में जाए और वहीं का हो जाए, वापस दुनिया में आने से डरने लगे, वो बात को समझ ही नहीं पाया। अगर तन्हाई ही भा जाए, वापस शहर में आने से तुम डरने लगे और ये सोचने लगे कि वापस लोगों में गए, वापस भीड़ में गए तो ये लज्जत खो जाएगी, तो जानो तुम्हें लज्जत मिली ही नहीं। जो लज्जत भीड़ में जाने से खो जाए वो लज्जत है ही नहीं, वो सुकून है ही नहीं। जंगल में जाने का मकसद बस इतना सा था कि तुम उस सकूत के आशना हो जाओ जो तुम्हारी बुनियादी नेचर है। सकून आशना हो गए, सकूत को छू आए, ये जान लिया कि ये आपकी असली हालत है, तो अब शहर या जंगल कोई मानी ही नहीं रखता। तुमने अपनी दौलत को पा लिया, वो दौलत के जिसको बस जानना है, पकड़ना नहीं है। अगर तुमने इस सकूत को पा लिया तो अब बाहर भीड़ हो या ना हो, तुम्हारे अंदर भीड़ नहीं हो सकती। तुमने जान लिया कि तुम जिंदगी के तजर्बे से बिल्कुल ही तने तनहा गुजरते हो। जंगल में निकल जाना, सहराओं का रुख करना,
तन्हाइयाँ चाहना शुरू में मुफीद हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम पौधे को लगाते हैं, वो निकलता है तो उसे सीधा रखने के लिए हम साथ सपोर्टें लगाते हैं, उसको गर्मी सर्दी से बचाते हैं। अभी वो नाजुक है, अभी वो आंधियों से टक्कर नहीं ले सकता, कोई जानवर उसे चर सकता है, कोई बच्चा उसे उखाड़ ना ले। तो शुरू में ये सहारे बजा हैं। बाड़ लगाना ठीक है, सपोर्ट देना ठीक है, खाद पानी धूप नमी का ख्याल रखना सब बजा है। लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तो सारी सपोर्टें हटा लेनी होती हैं, बाड़ हटा लेना पड़ती है। अब अगर बाड़ और सपोर्टें लगी रहें तो ये उस पौधे की मदद नहीं होगी, अब ये उसके लिए रुकावट बन जाएंगे। अब पौधे की अपनी जड़ें फैल गई हैं ज़मीन में, अब वो अपने बल पर खड़ा हो सकता है, आंधियों से लड़ सकता है, तूफानों को सह सकता है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। अब जानवरों के चरने की हद से वो बाहर निकल गया, अब बच्चों के उखाड़ने से वो उखड़ नहीं सकता। सुकून और सकूत, मराकबा और मेडिटेशन, ये भी इसी पौधे की तरह काम करते हैं। शुरू में तन्हाई इनको फ़ायदा देती है, जंगल इसे तक़वियत देता है, सहरा इसे मजबूत करता है। लेकिन जब सकूत की झलक मिल गई, अपनी असल हालत को जान लिया, और बात यह है कि सिर्फ जानना ही है, अपने आप को देखना ही है, खुद पर कोई हालत तारी करना मकसद नहीं है, बल्कि अपनी असल हालत को एक बार देखना है, जानना है, कॉन्शियस लेवल पर अपना आप जानना है। अब अगर तुम शहर में आने से डर रहे हो, लोगों से भाग रहे हो, भीड़ से छुप रहे हो, तो जानो तुमने जाना ही नहीं है खुद को। तुम जो हो वो जान लिया तो अब तुम्हारे होने को किसी महफिल से कोई खतरा नहीं। मुर्शिद जो तुमसे मराकबे कराता है, जो तुम्हें तन्हा मेडिटेशंस कराता है, जो तुम्हें जंगल भेजता है, उसका बस इतना ही मकसद होता है। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी दुनिया करने से जुड़ गई है, एक्शन से जुड़ी हुई है। तुम्हारे इर्द गिर्द करने की, एक्शन की एक दौड़ लगी है। तुम्हारी दुनिया में कहीं कोई मौका ही नहीं मिलता कि थोड़ी देर कुछ ना करने का, एक्शन लेस हो जाने का लुत्फ लिया जा सके। पुराने दौर के चीन में जो सबसे बड़ी नेकी खैर आला तसव्वुर किया जाता था, उसका नाम था वू वी, जिसका मतलब है एक्शन लेस एक्टिविटी, ऐसी सरगर्मी जिसमें कुछ भी नहीं करना। तुम्हारी दुनिया ने जीने का एक ऐसा ढंग चुन लिया है कि जिसमें एक्शन के बगैर बैठे हुए आदमी को ताने दिए जाते हैं कि ये सुस्तुल वजूद है। तुमने देखा नहीं अपनी दुनिया की ज़रबुल अमसाल को, खाली दिमाग शैतान का घर। तुम थोड़ी देर को आंखें बंद करके कहीं पार्क में बैठ जाओ तो लोग हैरत से देखना शुरू कर देते हैं। वो फजूल गपशप करते जत्थों को देखकर हैरत ज़दा नहीं होते। चाय की दुकानों पर आधा आधा दिन फजूल बैठे लोगों को हैरत से नहीं देखते। लेकिन अगर कोई चुप करके पार्क में अकेला मेडिटेशन कर रहा हो तो उसको सब हैरत से देखते हैं। ये तो है तुम्हारी दुनिया का ढंग। आंख बंद करके बैठना एक ऐसा जुर्म बन गया है कि कोई अगर ऐसा कर भी रहा है तो आंख खोल खोल कर बार बार चेक करता रहता है, कोई देख तो नहीं रहा। ना करने से तुम्हारी दुनिया को ऐसी चिढ़ है। पुरसकून और साकित बैठने की ये दुनिया इतनी मुखालिफ है कि कोई मेडिटेशन के लिए बैठना भी चाहे तो कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठता है, जैसे कोई जुर्म कर रहा हो। बेमकसद सरगर्मी कबूल है। अपने सारा दिन की सरगर्मियों को उठाकर तो देखो, कितनी बामकसद हैं तुम्हारी एक्टिविटीज। मगर ये फजूल सरगर्मियां तुम्हारी दुनिया को कबूल हैं। बस शांत, स्टिल, साकित, साइलेंट बैठना इस दुनिया को कबूल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया ने करने को ही होना मान लिया है। ये ह्यूमन बीइंग को जानते ही नहीं, ये ह्यूमन डूइंग को या ह्यूमन थिंकिंग को जानते हैं। कोई खामोश बैठा हो तो सारे कहते हैं वक्त ज़ाया कर रहा है। सुनते हो ना लोगों को कहते हुए वक्त दौलत है, टाइम इज़ मनी। पागल हैं ये लोग, समझते हैं कि टाइम को निचोड़ा जा सकता है, इसमें से कुछ कशीद किया जा सकता है,
कुछ कर गुजरो, कुछ थोड़ी दौलत और बढ़ा लो, ओहदे में एक तरक्की और पा लो, 2 की 3 फैक्ट्रियां कर लो, कुछ कर लो, टाइम मत गमाओ, वक्त को इस्तेमाल कर लो। डूइंग से तुम्हारी दुनिया ऐसी जुड़ गई है कि कुछ करने को ना हो तो लोग पागल होना शुरू हो जाते हैं। वेस्ट में मेंटल साइंसेस के कुछ डॉक्टरों ने कुछ तजर्बात किए हैं जिसमें लोगों को हर किस्म के गैजेट्स से महरूम करके अकेले कमरे में रहने पर मजबूर किया गया। तजर्बे में शामिल अक्सर लोगों की दिमागी हालत बिगड़ने लगी। और क्यों ना हो, दिमाग ने जो दुनिया तराशी है उसमें सारा कुछ ही करने से जुड़ा है, एक्शन से जुड़ा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ज़िंदगी का जो भी गहरे से गहरा सच है उससे तारुफ ही उस वक्त होता है जब तुम ना करने की हालत को पहुंच जाओ। ऐसी हालत के जिसमें कुछ कर भी रहे हो तो वो ऐसा हो कि जैसे कुछ करना नहीं पड़ रहा। इस बात को समझो कि तुम जिस भी मज़हब की इबादतें करने जाते हो, इन सारी इबादतों का मकसद तुम्हें ना करने की हालत में लाना होता है। करने से दुनिया मिलती है और ना करने से खुदा मिलता है। साइंस कहती है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर मैटर के मुकाबले में खला की मिकदार बहुत ही लामहदूद है। तुम्हारे जिस्म में खुलिए खला के मुकाबले में जो जगह घेरते हैं वो 0.00000000009 से भी कहीं कम है। और खला और मादे का यही रेशो पूरी कायनात में मौजूद है। करने की दुनिया बस इसी 0.000000009 की दुनिया है। ना करने की दुनिया बाकी के 99.99 की दुनिया है। ये सूफी गुरु मुर्शिद जो तुमसे मराकबे मेडिटेशंस कराते हैं वो बुनियादी तौर पर इसी महदूद दुनिया से निकलकर लामहदूद दुनिया से जुड़ने के लिए होते हैं ताकि तुम अनऑक्युपाइड हो सको। तुम हर वक्त ही ऑक्युपाइड होते हो। छोटी छोटी मसरूफियतें हैं जो सारा दिन तुम्हारे होने, तुम्हारी बीइंग के गिर्द एक धुंध तारी किए रखती हैं। इबादत और मराकबे का यही मकसद होता है कि ये धुंध छटे, तुमको देख सको। ये जो सारे मज़ाहिब की इबादतें हैं इनके साथ यही तो मसला हुआ है कि इन इबादतों को भी तुमने अपने काम की दुनिया में शामिल कर लिया है। तुमने नमाज को भी एक काम बना लिया है जो तुम 5 वक्त कर आते हो। तुम समझे ही नहीं कि नमाज असल में काम की दुनिया से कटने का एक जरिया था, उस धुंध को बिठाने का एक जरिया था जो तुम सारा दिन खुद पर तारी रखते हो। इनलाइटनमेंट के सफ़र का पहला संगे मील है तन्हाई और आखिरी मंजिल है कि तुम महफिल में भी तन्हा रह सको। तुम दुनिया में हो मगर दुनिया तुम में ना हो। तुम अगर अपने अंदर दुनिया को लिए बिना चल रहे हो तो हल्के फुल्के जियोगे, और दुनिया को अंदर लिए चल रहे हो तो थकन होगी, एंजाइटी होगी। फिर ये सारी दुनिया तुम जीत भी लो तो सुकून नहीं मिलेगा। तुम अगर अपनी भी जिंदगी को कभी गौर से देख लो कि कितनी चीजें थीं जो तुमने मांगी थी कि अगर वो मिल गई तो जिंदगी शांत हो जाएगी, मगर क्या तुम्हें तुम्हारा तजर्बा नहीं बताता कि वो सब जो तुमने पा लिया उस सब ने तुम्हें और बोझल कर दिया है। सालिक के सफर को समझो। सालिक तन्हाई को शुरू में चुनता है मगर ये तन्हाई उसकी मंजिल नहीं होती, बस खुद को पाने के सफर का पहला पड़ाव होती है। गारे हिरा संगे मील है। नबूवत का सफर तो गारे हिरा के बाद से शुरू होता है।